Hello everyone, this is your English teacher, and in our syllabus we are discussing that book whose name is Footprints Without Feet, and I think we have completed first three chapters in this book, and today we will start fourth chapter, that is a question of trust. Question means सवाल, trust means विश्वास. So a question of trust in this chapter. Before to start text, I would like to give some additional information about this chapter. In this chapter, you will come to know about a man whose name is Horace Danby, and by profession he is a gold lock maker. Okay, and in spite of this, he also used to make theft once in a year, right? So we can say that he is also a thief, and he makes theft once in a year to fulfill his requirements that is related to the books. Actually, he loves books very much, and he is in a habit of buying and reading rare and expensive books, but just because of business that he used to run, he was not able to get all the books, okay, which were in his demand. So to fulfill his demand, he used to make thefts, and only once in a year we can say that, and by that money he used to buy books that were very expensive at that time. अब हिंदी में सुनो. हॉरेस डैनबी नाम का एक आदमी है जो कि ताले बनाने का काम करता है, ताले बनाता है, और अपने काम में काफ़ी सक्सेसफुल है, वो अच्छे से करता है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है इस फील्ड में. बट इसके अलावा उसकी एक हॉबी है. हॉबी क्या है? हॉबी ये है कि उसे महंगी किताबें पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो चोरी का जो ये गोल्ड कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, जो लॉक बनाने का जो ये उसका धंधा है, जो काम है, उसमें वह इतने पैसे नहीं कमा पाता कि वह इतनी महंगी महंगी बुक्स खरीद सके. तो वो क्या करता है, साल में एक बार चोरी करता है, और उन चोरी किए गए पैसों से एक साल में जितनी बुक्स खरीद सकता है उन पैसों से वो खरीदता है. फिर जब वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो एक अगले साल फिर वो चोरी करता है. मतलब सिर्फ एक ही बार चोरी करता है, और उन चोरी के पैसों से पूरे साल भर का काम उसका निकल जाता है. एक्चुअली यहाँ पे खाने पीने की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स की हम बात कर रहे हैं. सो यही इसमें, अब इसमें है क्या, इन दिस चैप्टर ही goes to make a theft in a house whose name is actually that is given in the book Sootover Grange. Sootover Grange नाम का एक बंगला है. He went there to make a theft. चोरी करने के लिए उस घर में जाता है. अब देखते हैं उस घर में चोरी करता है तो क्या होता है, क्या नहीं होता. Now I am going towards the text. I hope you all are ready. Please open your books, and now let's start. So from here our chapter starts. A question of trust. It is said that you must set a thief to catch a thief. इसका मतलब ये है, set a thief का मतलब है to think like a thief. ठीक है, चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है. But it is also said that there is honor. honor का मतलब होता है सम्मान. Among thieves, ऐसा भी कहा गया है कि चोरों के बीच में, मतलब वो आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं. Which saying does this story illustrate? देखते हैं कौन सी कहावत या कौन सी बात ये कहानी बताएगी. Illustrate का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, to explain. Okay, so this is the text that I am going to start. देखिए, Everyone thought that Horace Danby was good, honest citizen. हर किसी को लगता था कि होरेस डैनबी जो है एक अच्छा और ईमानदार सिटीजन है, नागरिक था. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. एक housekeeper है उसके घर में जो अपनी हेल्थ को लेके उसकी हेल्थ को लेके काफ़ी चिंतित था. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. सब कुछ ठीक था, बट समर के दौरान उसे हे फीवर का मतलब होता है मौसमी बुखार. जो मौसम के चेंज होने पर बुखार आता है ना, दैट इज़ कॉल्ड हे फीवर. उसको कई बार जैसे मौसम चेंज होता था, गर्मियों में उसको हे फीवर हो जाता था,
हॉरेस डेनबी को। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वह लॉक बनाने का काम करता है और इतना कामयाब है वो अपने बिजनेस में कि उसने 2 हेल्पर भी रख रखे हैं अपने पास। यस, होरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन बनेगा हमारे पास कि वाई होरेस डेनबी वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट दो ही वॉज गुड एंड रेस्पेक्ट। क्वेश्चन है ये, अभी आपको पता लग जाएगा। वो इसलिए नहीं था क्योंकि वह चोरी करता था। इसे मैं लिखवाऊंगा जब आपको पता चल जाएगा। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. प्रिजन का मतलब होता है जेल, लाइब्रेरी का मतलब होता है कि पुस्तकालय। 15 साल पहले उसने अपने जीवन की पहली और एकमात्र सजा काटी थी एक लाइब्रेरी की जेल में, और वहाँ पर ही लिव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, उसे महंगी और दुर्लभ, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो बड़ी मुश्किल से मिले, ऐसी किताबों से होरेस डेनबी को प्यार हो गया था, मतलब पसंद करने लग गया था। एक हैबिट बन गई थी उसी की, मुझे भी अब आगे भविष्य में ऐसी ही बुक्स पढ़नी है। सो ही रोब्ड ए सेफ एवरी ईयर। सेफ का मतलब होता है तिजोरी, हर साल एक तिजोरी लूटता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। ठीक है, इसमें ये मैं बता चुका हूँ। वैसे हर साल एक तिजोरी लूटता था, उनसे बुक्स खरीदता था और 12 महीने काम चल जाता था, और उन पैसों से बहुत ही गुप्त रूप से अपने एजेंट के थ्रू वह किताबें खरीदता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others। चलते हुए एक दिन, जुलाई का महीना था और सूर्य की किरणें बड़ी तेज़ थी, तो उसने सोचा कि इस साल जो मैं रॉबरी करूँगा वो भी उतनी सक्सेसफुल होएगी जितनी रॉबरी हमारे आज से पहले सक्सेसफुल हुई है। For 2 weeks he had been studying the house at Sutover Grange। Sutover Grange नाम के उस घर को वह स्टडी कर रहा था चोरी करने के लिए, मतलब एक प्लानिंग कर रहा था पिछले कुछ दिनों से। 2 weeks यहाँ पे लिखा हुआ है। लुकिंग एट इट्स रूम, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, 2 नौकर उस घर की देखभाल करते हैं, हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंडन। नौकर वहाँ रहते थे जो हाउसकीपिंग का काम करते थे, बाकी उस घर का जो मालिक था या दूसरे जो लोग थे वो लोग लंदन में रहते थे, वहाँ पे नहीं रहते थे। तो दे बोथ सर्वेंट हैड गॉन टू द मूवीज़, और उस दिन वो दोनों सर्वेंट मूवी देखने के लिए चले गए थे सिनेमा हॉल में, और उसी दिन उसने प्लानिंग बनाई कि आज मैं चोरी करूँगा। होरेस सॉ देम गो, होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा, एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। काफ़ी खुश था, बस थोड़ी दिक्कत ये थी कि उसको गुदगुदी हो रही थी नाक में जुकाम हे फीवर की वजह से, फिर भी वह खुश था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, इट्स हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। अपना जो भी सामान था चोरी करने का वो एक बैग में डाल रखा था और बैग अपनी पीठ पर लाद रखा था उसने। There were about 15,000 pounds worth of jewels, jewels means ज्वेलरी, लगभग 15,000 पाउंड की ज्वेलरी उस घर में रखी हुई थी। इन द ग्रेंज सेफ, उस अलमीरा में, उस घर के अंदर जो तिजोरी थी उसमें। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, अगर वह उनको एक एक करके बेचेगा, ये एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो 5,000 की वो आराम से बिक जाएगी। 15,000 का सामान तो पास में बिकेगा ना, क्योंकि चोरी का है। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम। ऑटम के महीने में 3 नई किताबें आ रही जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। जो पैसे उसको चाहिए थे उन बुक्स को खरीदने के लिए, वो पैसे अब उसे प्राप्त होने वाले थे। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना बच्चों। थैंक यू, हैव ए गुड डे।